वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले, जैसे हम एवरी क्लास में पिछले क्लास का रिवीजन पहले करते हैं, सो वील डू दैट. We'll quickly revise whatever we had done in the last class. We started with this new chapter, that is nature, objectives and scope of audit. तो आज जो रिवीजन करेंगे ना, उसमें आपको एनर्जेटिकली एकदम मेरे साथ में रिवाइज करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारा टॉपिक्स को समझ लिया है. मैंने आपको लास्ट क्लास के एंड में भी सब कुछ रिवाइज कराया था, और आई एक्सपेक्ट कि आप थोड़ा सा पेजेस फ्लिप करके एटलीस्ट आज की क्लास को स्टार्ट किए हो. सो आपको कोशिश करनी है जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे साथ रिपीट करने की, ठीक है. थिंक एंड जो भी अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो एटलीस्ट मुझे केयरफुली आप सुनिए, ठीक है. सो वी हैड स्टार्टेड विद दिस चैप्टर, जिसमें पहला टॉपिक था मीनिंग ऑफ ऑडिट. व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट. मतलब एनपीओ अगर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मैम क्या उसकी भी ऑडिट हो सकती है? यस, हो सकती है. Whether profit oriented or not, irrespective of its legal form or size, when such an examination is done with a view to express an opinion thereon. ठीक है, ये हो गया था हमारा definition of auditing. Next concept जो हमने start किया, that was essay 200 में overall objectives of an independent auditor. एक बार मेरे साथ repeat करेंगे. essay 200 का title क्या है? overall objectives. बोलिए बोलिए. overall objectives of an independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards on auditing. पहला पार्ट क्या था? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर. सो एज पर essay 200 देयर आर टू ऑब्जेक्टिव्स, टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर. नंबर वन इज टू obtain reasonable assurance whether FS as a whole are free from material misstatements and thereby presenting a true and fair view of the state of affairs of the entity and the results of the entity. This is objective number one. Objective number two is to issue an appropriate report and communicate as required by the standards on auditing. So this was the overall objectives of the auditor. Now second part जो ऐसे का है, that is conduct of an audit in accordance with standards on auditing, which says that the auditor does not have to comply with all the standards on auditing, but only has to comply with the relevant standards on auditing, that is the ones which the circumstance addressed in the essay exists. If the circumstance addressed in that particular essay exists for the client entity, only then we'll comply with that standard. Do we have to comply with the entire standard or only the relevant requirements? Only the relevant requirements which are applicable to our client entity. Okay. Third thing that this point says is the auditor has to determine whether any additional audit procedures are required in addition to those which are mentioned in the standards on auditing. Fourth thing is that the auditor should use the individual objectives stated in each standard on auditing to achieve the bigger goal. इसके लिए मैंने आपको क्या बोला था? मिनी गोल्स को अचीव करिए to achieve the higher or the bigger goal. राइट. नेक्स्ट टॉपिक दैट वी स्टडीड वाज द स्कोप ऑफ ऑडिट. एक बार हम देख लेते हैं. स्कोप ऑफ ऑडिट में हमने क्या किया था? व्हाट शुड बी कवर्ड इन द ऑडिट? ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू अकाउंट्स एंड फाइनेंस, नंबर वन, शुड बी कवर्ड. The auditor should check whether the information is properly disclosed or not, whether the information is reliable and sufficient or not. Information जिसके basis पे underlying accounting records बने हैं, क्या वो reliable और sufficient है? Whether all the disclosures as per regulatory and statutory requirements have been made or not. The auditor should not perform any duty which falls outside his scope and competence, and any limitation on the scope of audit should be clearly set out in the audit report, right? उसके बाद आते हैं एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट. सो व्हाट आर इन डिटेल, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स दैट द ऑडिटर नीड्स टू कवर? फर्स्ट ऑफ ऑल, द ऑडिटर विल कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड देयर सपोर्टिंग एविडेंसेस, with the underlying accounting records and the supporting documentary evidences. The auditor will verify the authenticity and validity of transactions as stated in the statement of PL account. ये हो गया अपना क्या? पॉइंट नंबर टू. पॉइंट नंबर थ्री क्या हो गया? वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स. पॉइंट नंबर फोर, वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द लायबिलिटीज. पॉइंट नंबर फाइव, इवैल्यूएशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल एंड अकाउंटिंग कंट्रोल. पॉइंट नंबर सिक्स, वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स एज शोन बाय द स्टेटमेंट ऑफ PL. एंड पॉइंट नंबर सेवन वॉज टू रिपोर्ट टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी और बॉडी. इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल में ये भी था कि कोई भी अगर सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी या वीकनेस है, दैट शुड ऑल्सो बी हाईलाइटेड बाय द ऑडिटर. देन वी स्टडीड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट. क्विकली व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट? इट सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट. It acts as a moral check on the employees.
It is helpful in settling tax liabilities. It is helpful in settling trade disputes. For example, labor disputes हो गए, कोई creditors के साथ dispute हो गए. It helps in settling all those disputes. It is also helpful in settlement of accounts. A lot of time government asks for certified and audited accounts in case we apply for any financial assistance, say for any subsidy or grant, any such thing. उसके लिए audit government जो है हमसे audited financial statements मांगते हैं. ऑडिट कराने से एक ये भी फायदा है कि वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेदर प्रॉपर रिकॉर्ड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड और नॉट, आर मेंटेन्ड और नॉट, ये वेरीफाई हो जाते हैं. इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल हो जाता है. विद द इंटरनल कंट्रोल विच इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट एंड TCWG, इज इट प्रॉपरली ऑपरेटिंग और नॉट, इज इट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, इसके ऊपर एक इवैल्यूएशन हो जाता है. सो दीज आर अ फ्यू एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट. उसके बाद है इनहेरेंट लिमिटेशंस. लिमिटेशंस क्या थी? 5 इनहेरेंट लिमिटेशंस थी. फर्स्ट वाज द नेचर ऑफ financial reporting, the nature of audit procedures, timeliness of financial reporting, balance between time and cost, and some other subject matters like fraud, related party relationships and transactions, non-compliance with laws and regulations, and doubts about the going concern. So these are certain factors, these are certain assertions जिनको लेके एक significant limitation हमारी audit पे जो है impose हो जाता है. ठीक है. Then the topic that we studied, last one was relationship with other disciplines. Is audit a individual subject or is it related to a lot of other disciplines? क्या ये एकदम सोल है, मतलब वन मैन आर्मी, या फिर रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन्स? इट इज रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन्स. विल द ऑडिटर बी अ गुड ऑडिटर अगर सिर्फ उसके पास ऑडिट की नॉलेज हुई, या उसको बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी एरियाज ऑफ स्टडीज़ की नॉलेज भी होनी चाहिए? मैम उसको बाकी एरियाज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए. जैसे कि मैम अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, और बोलिए लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, लॉजिक एंड एथिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, मैम बिहेवियरल साइंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज द ऑडिटर विल इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल. अच्छा मुझे बताओ, इकोनॉमिक्स में ऑडिटर को ज़्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की? मैम मोस्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स नॉलेज इज रिक्वायर्ड. स्पेशल फोकस ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज द ऑडिटर शुड नो व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ प्राइस, डिमांड, सप्लाई इन द क्लाइंट एंटिटी. ओके, एंड प्रोडक्शन साइकिल के बारे में भी उनको पता होना चाहिए. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हाउ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इज अफेक्टिंग द क्लाइंट एंटिटी, दिस ऑल्सो द ऑडिटर शुड बी अवेयर ऑफ. राइट. सो दिस इज द क्विक रिविजन ऑफ द लास्ट लेक्चर. ठीक है, आई होप आपको याद हो रहा होगा धीरे धीरे. ठीक है, आपको भी थोड़ा एफर्ट डालना है, और बाकी मैं तो अपना 100% दे रही हूँ आपको सब कुछ याद कराने के लिए क्लास में ही. ठीक है, ओके. सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर. तो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं आपकी क्वालिटीज़ के बारे में. ठीक है ना. जब आप ऑडिटर बन जाओगे उसके बाद आपके अंदर कैसी कैसी क्वालिटीज़ होगी, देन ओनली विल बी कॉल्ड अ गुड ऑडिटर. आप मुझे बताइए, कुछ क्वालिटीज़ आप सोच सकते हैं? देखना नहीं है, हाँ, चीटिंग नहीं करना है कोई भी. क्या आप सोच सकते हैं कुछ क्वालिटीज़ जो ऑडिटर में होनी चाहिए? मैम अभी जो एक हमने पढ़ा कि नॉलेज ऑफ दीज वेरियस डिसिप्लिन्स. वेरी गुड. सो द ऑडिटर शुड हैव नॉलेज ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग लॉ, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स. तो सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज होने से चलेगा कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे ये डिसिप्लिन्स अप्लाई करते हैं इसकी भी नॉलेज चाहिए? मैम ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल भी चाहिए, क्योंकि ऑडिट तो प्रैक्टिकली करेंगे ना. देखो बच्चों, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज थियोरिटिकल. सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज यू शुड बी थियोरिटिकली स्ट्रॉन्ग, बिकॉज थियोरिटिकली अगर आप स्ट्रॉन्ग होगे तभी तो आप एप्लीकेशन उस चीज़ का कर पाओगे ना, है ना. अगर आपको अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज की थियोरिटिकल नॉलेज अच्छी है, आपको समझ आया हुआ है सब कुछ, यू हैव अ साउंड ग्रिप ऑन द कॉन्सेप्ट्स, ओनली देन यू विल बिकम अ गुड अकाउंटेंट अगर आपको अकाउंट्स बनाने हैं तो. Similarly, in case of auditor should have good and sound knowledge of all the standards on auditing. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ले लो आप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ले लो आप, टैक्सेशन की लॉज ले लो. साउंड नॉलेज उनको थियोरिटिकली तो होनी ही चाहिए. उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी इम्पॉर्टेंट है. तभी तो आपके जो करिकुलम में आर्टिकलशिप 3 years का इंक्लूड किया गया है, राइट. और उसके टेस्ट भी आजकल लेने लग गए हैं ताकि स्टूडेंट्स उसको सीरियसली लें. तो ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़बरदस्ती एक इम्पोज नहीं किया गया आपके ऊपर. दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ अ गुड ऑडिटर. कल को सीधा 3 साल बाद आप जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, कोई प्रैक्टिकल वर्ल्ड का आपको एक्सपोजर ही नहीं है, यू डोंट नो हाउ ऑडिट इज प्रैक्टिकली कंडक्टेड. बस आपने ऐसे सारे पढ़ लिए, एकदम क्लास करके 100% कॉन्फिडेंट हो गए, इससे चलेगा क्या? नहीं. यू शुड हैव प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. इसलिए आपके CA करिकुलम में 3 years का आर्टिकलशिप है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
सो द ऑडिटर शुड हैव साउंड थियोरेटिकल नॉलेज एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज. सिर्फ ऑडिटिंग का या बाकी डिसिप्लिन का भी, सारे डिसिप्लिन का, इंक्लूडिंग लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एट्सेट्रा. अच्छा, लॉज में सिर्फ जनरल लॉज की नॉलेज होनी चाहिए कि स्पेशल फीचर्स ऑफ द बिजनेस की भी नॉलेज होनी चाहिए. जैसे अगर किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे काम करती है उसकी नॉलेज, किसी एफएमसीजी सेक्टर में जा रहे हैं तो उनका बिजनेस कैसे ऑपरेट करता है, सीमेंट में जा रहे हैं तो सीमेंट इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, बैंक की ऑडिट करें तो बैंक के कौन से पिक्यूलियर फीचर्स होते हैं जो बाकी ऑडिट्स में हमने नहीं देखे. तो मैम स्पेशल पिक्यूलियर फीचर्स, पिक्यूलियर मतलब क्या हो गया, समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए. राइट ये सब आपने जो बात की मैम टेक्निकल पॉइंट्स हैं. टेक्निकली साउंड ऑडिटर को होना पड़ेगा. टेक्निकल मतलब क्या हो गया, नॉलेज वाइज, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाइज, आप समझ सकते हो, प्रोफिशिएंसी वाइज. इसके अलावा ऑडिटर की कुछ पर्सनल क्वालिटीज भी होती हैं. क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर मतलब हो गया क्वालिटीज ऑफ अ गुड ऑडिटर. ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट. सबसे पहले तो ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट, तभी तो आप अपने इंडिपेंडेंस से कंप्लाई कर पाओगे ना. अगर मैं डिसऑनेस्ट हूं तो मैं अपने इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस को कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, बिकॉज आई एम नॉट वेरी ऑनेस्ट. सो द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ द ऑडिटर, पर्सनल क्वालिटी की मैं बात कर रही हूँ, इट इज द ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट. अच्छा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म याद है आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में एबीसीडी में हमने पढ़ा था. व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? It is the attitude of questioning mind. It is being alert to conditions indicating possible misstatements and critical assessment of audit evidence. तो इसके लिए ऑडिटर को कॉशियस रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा. सो क्वालिटी नंबर 2 इज द ऑडिटर शुड बी कॉशियस. मतलब कुछ भी हो रहा है, आपका ध्यान ही नहीं है, यू आर जस्ट वेरी वेरी इन्वॉल्व इन योर वर्क, आपको बस अपना काम करना है, खत्म करना है, घर जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए. यू हैव टू बी कॉशियस, यू हैव टू बी अलर्ट, प्रोफेशनली स्केप्टिकल यू हैव टू बी. उसके बाद प्रोफेशनल जजमेंट याद है आपको, एप्लीकेशन ऑफ कैट, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग. तो ऑडिटर शुड हैव अ गुड डिसीजन मेकिंग पावर. जो डिस्क्रिशन कहते हैं ना हम, डिस्क्रिशन मतलब क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग पावर. सो ऑडिटर शुड हैव पावर और केपेबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स, गुड प्रोफेशनल जजमेंट्स. उसके बाद अगर बात करूं मैं इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी अगेन फॉर एन ऑडिटर. इंटेग्रिटी मतलब मैम क्या हुआ, इंटेग्रिटी मीन्स बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट. अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब इंटेग्रिटी का बेसिक, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में मीनिंग में जाऊं, इंटेग्रिटी मीन्स आज मैं आपको कुछ कह रही हूं, कल मैं अपनी ही बात से मुकर जा रही हूं. अगर कोई इंसान ऐसा होता है तो हम उससे कहते हैं कि दिस पर्सन हैज लैक ऑफ इंटेग्रिटी. समझ रहे हो आप, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, आज कुछ कह रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम ना ऑडिट के लिए मैं पूरा समरी नोट्स बनाऊंगा, मैं पूरे क्वेश्चन आंसर्स को लिख लिख के सॉल्व करूंगा, बट कल को जाके पता चलता है कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं. मतलब क्या, एक लगता है ना इसकी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही फेंकते रहता है. हम भी अपने जनरल लाइफ में ऐसे पर्सन से डील करते हैं, राइट. सो ऑडिटर ऐसा नहीं होना चाहिए. ऑडिटर शुड बी एन इंटीग्रल पर्सन, उसके अंदर इंटेग्रिटी भरपूर होनी चाहिए, ताकि आज बोल रहे हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कल जाके अपनी ही बात से मुकर रहा है, कुछ और कह रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. ऑडिटर शुड हैव इंटेग्रिटी, शुड पोजेस इंटेग्रिटी. ऑडिटर शुड ऑल्सो बी टैक्टफुल. टैक्टफुल मतलब क्या होता है, टैक्टफुल इज समवन हु इज वेरी स्किलफुल, हु नोज हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस वेल. सो ऐसे पर्सन बहुत डिफिकल्ट होते हैं फाइंड करने. मतलब इजी सिचुएशन में तो हम सभी शेर बन जाते हैं ना, बट जब डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस आती है लाइफ में या आपके प्रोफेशनल वर्क में जब डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगी, उनको कैसे टैक्टफुली मतलब माइंडफुली स्किलफुली डील करना है, ऐसे लोगों को हम कहते हैं टैक्टफुल. सो ऑडिटर शुड ऑल्सो हैव टैक्ट. He should know how to get work done from others. अगर क्लाइंट मतलब कर रहा है कि हम ये पेपर्स नहीं दे सकते आपको, इट्स नॉट अवेलेबल विद अस, कल देंगे परसों देंगे, ऑडिटर शुड नो कि उससे कैसे हमें काम निकलवाना है. एक हिंदी में कहावत है ना कि घी अगर सीधे हाथ से नहीं निकले तो आपको उंगली से निकालना पड़ता है, ऐसा कुछ कहावत है ना, सुने आपने, है ना. एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, देखो अभी काफ़ी भूल चुकी हूँ मैं ये सब. तो अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो आपको टेढ़ा करके निकालना पड़ता है. इंग्लिश में कहे तो बाई हुक और क्रूक यू हैव टू गेट द वर्क डन. सो द ऑडिटर शुड नो हाउ टू गेट द वर्क डन. ये हो गया एक और उसका पर्सनल क्वालिटी. ही शुड मेंटेन इंडिपेंडेंस, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद हिज ऑब्जेक्टिविटी, शुड ऑलवेज बी अनबायस्ड.
So these are some qualities of a good auditor. Should have good communication and leadership skills, because engagement partner कल को आप जाके बन जाते हो, आपको एक पूरी टीम को हैंडल करना पड़ेगा. So you should have leadership qualities, right? So these are some qualities of a good auditor. Let's check in the topic क्या क्या और है. टैक्ट होना चाहिए. टैक्ट मैंने आपको बताया. इफ यू वांट यू कैन राइट ऑल्सो. टैक्ट मतलब क्या हुआ? लिखेंगे. skillful in handling difficult situations. skillful in handling difficult situations. ठीक है. उसके बाद आता है कॉशन. कॉशन मतलब तो आपको पता ही है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है. फर्मनेस. फर्मनेस मतलब हो गया द ऑडिटर शुड बी फर्म इन वट एवर ही डज एंड सेज. ठीक है, ऐसा नहीं आज कुछ बोला कल कुछ और बोला. फर्म होना चाहिए, डिटर्मिन्ड होना चाहिए. गुड टेम्पर. ठीक है, ऐसा नहीं क्लाइंट आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहे तो आप जाके एकदम आग बबूले हो गए क्लाइंट प्लेस पे. ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड हैव अ गुड टेम्पर. यू शुड हैव कंट्रोल ऑन योर एंगर ऑल्सो. डिस्क्रिशन. डिस्क्रिशन मतलब हो गया डिसीजन मेकिंग पावर. लिख लीजिए. डिसीजन मेकिंग पावर. इंडस्ट्री. इंडस्ट्री मतलब क्या हो गया? हार्ड वर्किंग. इंडस्ट्री मतलब इसमें ये नहीं हुआ कि यू शुड हैव नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री. इट मीन्स हार्ड वर्किंग. एक्चुअली इंडस्ट्रियस बोलते हैं ना, कोई आदमी इंडस्ट्रियस है उसका मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग. किसी भी प्रोफेशन में अगर आपको अच्छा बनना है, यू हैव टू एक्सेल इन एनी पर्टिकुलर थिंग, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग. यू कैनॉट बी लेथार्जिक एंड जस्ट हो जाएगा, कर लेंगे, चल जाएगा. मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है. तो ऑडिटर को भी मेहनती होना पड़ेगा. जजमेंट. ऑडिटर शुड हैव गुड प्रोफेशनल जजमेंट कैपेबिलिटीज. पेशेंट होना चाहिए. क्लियर हेडेडनेस होनी चाहिए. पेशेंस मतलब आई बिलीव यू अंडरस्टैंड. धैर्य होना चाहिए. मतलब यू शुड हैव you should be patient. You should not be very हड़बड़ी kind of a person कि हड़बड़ा के हर चीज़ जल्दी जल्दी में करना है. Clear headedness. You should know what you are doing. Objective एकदम clear होना चाहिए. ऐसा नहीं ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं. Not too many thoughts. Clear headed होना चाहिए. Reliability. Any person can rely upon you. This is very important again. It is linked to your firmness and integrity. If you have integrity only, then you are reliable. अगर मैं आपको आज कहूँ कि मैं आपको पूरे ऑडिट के समरी नोट्स बना के दे दूंगी, मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, पर आपका कोई फ्रेंड सपोज आपको कहे कि आपको मैं समरी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, मैं तुम्हें पूरा समझा दूंगा, पूरा मैं तुम्हें शॉर्ट में एकदम बता दूंगा हर चीज़, और कल को जाके वो कुछ बताया ही नहीं, आपको कुछ दिया ही नहीं, तो क्या वो पर्सन रिलायबल है? नहीं है. और ऑडिटर के ऊपर तो कितने लोग रिलाई कर रहे हैं. पहली ही क्लास में हमने ये समझ लिया था कि ऑडिटर को अपॉइंट ही क्यों किया गया है, ताकि जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंक्रीज हो. इसीलिए तो हमने ऑडिटर को अपॉइंट किया है, राइट. सो रिलायबल तो उसको होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके ओपिनियन पे बहुत लोग रिलाई करके अपनी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, फाइनेंशियल डिसीजंस है, वो लेने वाले हैं. ठीक है, तो ये हो गई ऑडिटर की कुछ पर्सनल क्वालिटीज़. उसके बाद हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटेग्रिटी बैक्ड बाय एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस. इंटेग्रिटी में आप लिख लेंगे एक बार. व्हाट डज इंटेग्रिटी मीन्स? स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट. जस्ट कीप ऑन नोटिंग द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स जो मैं लिखा रही हूँ आपको. और इसके अलावा भी मैं जब बोलती हूँ तो आपको अगर कुछ लगे कि दिस मीनिंग आई एम नॉट अवेयर ऑफ, बहुत अगर कुछ सिंपल होता है तो मैं उसको लिखती नहीं हूँ, बट फिर भी अगर आपको लगे कि आपको नहीं आता है, देखो इसमें शर्म करने की बिल्कुल कोई भी बात नहीं है. हो सकता है कोई मीनिंग ऐसा हो जो मैं बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को पता होगा, बट अगर आपको नहीं पता है जस्ट कीप नोटिंग इट डाउन. लिख लोगे एक बार तो जब वापस आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा. सो द ऑडिटर शुड पोजेस इंटेग्रिटी एंड शुड हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस. Knowledge of the general principles of law, both practical training and theoretical education. जो मैंने बोला ना, practical training आपकी जो articleship होती है, so the auditor should have sound theoretical knowledge also as well as practical training. Special features which are peculiar to a particular business. Peculiar मतलब लिख लो different. Special features which are peculiar to a particular business मतलब हो गया different to that particular business. Basic human qualities.
जैसे ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी भरोसा कर सके उसके ऊपर, ऑनेस्ट होना चाहिए, ये सब भी आपकी बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज़ में आ गई। यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग, यू शुड हैव एम्पैथी टूवर्ड्स अदर्स। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट प्लेस में जाके बोलेंगे दिन रात हम लोग काम करेंगे, मैं दिन रात ऑडिट करूंगा, आपको भी दिन रात मुझसे कोऑपरेट करना है। यू शुड नॉट बी लाइक दैट, यू शुड पोजेस बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज, रिस्पेक्ट टूवर्ड्स अदर्स, राइट। नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड इट्स ब्रांचेस। एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड इट्स ब्रांचेस मतलब अकाउंट्स की आपको साउंड नॉलेज होनी चाहिए। रादर सारे जो डिसिप्लिन हमने ऊपर पढ़े उसकी आपको साउंड नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो भी क्वालिटीज़ है ना, इसको अपने दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज़ योर पर्सनल क्वालिटीज़ एंड टेक्निकल क्वालिटीज़, ठीक है। मैं पी और टी लिखते जाऊंगी एक एक पॉइंट के पास, आपको भी वैसे ही लिखना है। तो द फर्स्ट वन, आप मुझे बताओ क्या ये पी है या टी है? मैम ये पी है, पर्सनल क्वालिटी हो गई। हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस, ये पर्सनल हुआ कि टेक्निकल हुआ? टेक्निकल इज समथिंग विच इज एसोसिएटेड विथ योर नॉलेज एंड स्टडीज, राइट मैम, ये भी पर्सनल क्वालिटी हुआ। नॉलेज ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, मैम ये टेक्निकल क्वालिटी हुआ। बोथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड थियोरिटिकल एजुकेशन, ये क्या हुआ मैम? ये भी हमारा टेक्निकल क्वालिटी हो गया। स्पेशल फीचर्स पिक्यूलियर टू अ पर्टिकुलर बिजनेस, ये क्या आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है या फिर आपकी टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड है? मैम टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड है। बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज, ये पर्सनल हो गया। एंड एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड इट्स ब्रांचेस, ये भी टेक्निकल हो गया। सो वी हैव 3 पर्सनल एंड 4 टेक्निकल। बट पर्सनल का जो पॉइंट नंबर 1 है ना, उसी में आप देख लो कितनी पर्सनल क्वालिटीज आ गई। टैक्ट, कॉशन, फर्मनेस, क्लियर हेडेडनेस, पेशेंस, डिस्क्रीशन, राइट। काफी सारे पॉइंट्स इसी के अंदर कवर हो गए। आई होप इट्स क्लियर नाउ। 1 minute आई एम गिविंग यू, वट एवर इज देयर ऑन द स्क्रीन, अगर आपने कुछ भी मिस आउट कर दिया है तो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन नाउ। क्लास में कभी भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैम बहुत फास्ट जा रही है, जो लिख रही है उसको फटाफट कॉपी करने पे लगा जाए। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने जो लिखा है स्क्रीन पे वो हो सकता है स्टूडेंट्स ने ना कॉपी किया हो, आई विल गिव यू टाइम आफ्टर माई एक्सप्लेनेशन। इन बिटवीन आई कैनॉट स्टॉप, बिकॉज अगर मैं इन बिटवीन स्टॉप कर दूंगी तो फ्लो टूट जाएगा। सो यू हैव टू, योर फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन लिसनिंग। राइटिंग पार्ट जो भी होगा उसके लिए मैं समय दूंगी। अगर आप साथ साथ लिख सकते हो तो वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं लिख सकते हो तो यू शुड वेट, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ लिखने के लिए। सो यू हैव 1 minute, यू कैन जस्ट कॉपी डाउन वट एवर इज गिवन। जिन्होंने कॉपी ऑलरेडी कर ली है, जस्ट गो थ्रू इट वंस, एक बार पढ़ लीजिए क्या क्या है क्वालिटीज। इसके बाद हम इसका जो क्वेश्चन है रिलेटेड वो देखने वाले हैं। ये जो हार्ड वर्किंग लिखा है, दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियस, ठीक है। ओके, आई होप आपका जो लिखना है वो हो गया अभी कंप्लीट। अभी हम इसका क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। एक ही क्वेश्चन है सिंपल, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। जस्ट कम टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स, वी विल सी दैट। क्वेश्चन की फ्रेमिंग के ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। जिन लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन खोल लिया है वो देख रहे होंगे, लॉर्ड जस्टिस लिंडे का यहाँ पे नाम लिया हुआ है, लंदन एंड जनरल बैंक केस का नाम लिया हुआ है। सो ये एक केस लॉ है जो हिस्ट्री में हुआ था, जिसमें ऑडिटर की क्वालिटीज़ के ऊपर जजमेंट आई थी। तो आपने केस लॉज काफ़ी लॉ में भी सुने होंगे, बट इंटरमीडिएट लेवल पे कोई भी केस लॉज रेलिवेंट नहीं है, तो हम उसको अभी उसकी डिटेल में जाएंगे नहीं, बिकॉज जितना टीचर्स ज़्यादा बताते हैं ना, स्टूडेंट सोचते हैं लिख लेते हैं उसको भी याद रखेंगे। सो डोंट टेक अननेसेसरी बर्डन राइट नाउ। ये बस एक केस लॉ हुआ था हिस्ट्री में, उससे कोई जजमेंट आई थी, उसी के ऊपर आपको क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर को एक्सप्लेन करना है। सो सिंपल जो भी क्वालिटीज़ हमने अभी पढ़ी, टैक्ट, कॉशन, फर्मनेस, गुड टेम्पर, जजमेंट, इंडस्ट्री, पेशेंस, इंटेग्रिटी हो गया, नॉलेज ऑफ लॉज हो गया, नॉलेज ऑफ पिक्यूलियर फीचर्स ऑफ अ बिजनेस हो गया, गुड थियोरिटिकल नॉलेज एज वेल एज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज, ऑल दीज आर गिवन। तो अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, जिसमें पहले किसी केस लॉ को रेफर किया हुआ है या कुछ 2-3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट क्लास में भी कि आपको पहले वो स्टेटमेंट्स को ही कॉपी करते जाना है, ठीक है। उसके बाद में उसके बेसिस पे आपको अपना जो पॉइंट पे है आना है। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट में भी एक कुछ केस स्टडी जैसा क्वेश्चन था, इनहेरेंट लिमिटेशंस में केस स्टडी जैसे क्वेश्चंस थे, तो पहले आप उसी को कॉपी कर लीजिए। पहले आप वो 2-3 स्टेटमेंट जो है वही लिखिए, उसके बाद आप एंड अकॉर्डिंग टू दिस द क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर आर एज फॉलोज, ठीक है। सो आई होप हो गया, इसको भी अपने टिक मार्क कर लेंगे।
एंड देन वील स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है ना, इसको मार्क कर लीजिए दैट वी हैव डन दिस. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 9, दैट इज स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस. चार्ट्स में आ जाइए वापस से. टॉपिक नंबर 9, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस. तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पे, इसमें कौन से स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है मैम? क्या ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, जैसे कि ऐसे 200 हमने पढ़ा था, क्या ये उन स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं? यहाँ पे अलॉन्ग विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, अदर स्टैंडर्ड्स, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, जो पूरा ग्रुप है उसकी बात हो रही है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, नॉट जस्ट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बट एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स. एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स मतलब कोई भी असाइनमेंट, कोई भी एंगेजमेंट जो आपका होगा, भले ही ऑडिट एंगेजमेंट हो, अश्योरेंस एंगेजमेंट हो, कोई दूसरे सर्विस का एंगेजमेंट हो, जो एज एन ऑडिटर, एज ए प्रैक्टिशनर आप प्रोवाइड करते हैं कोई सर्विस, उसके रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं. और क्वालिटी कंट्रोल मतलब आपकी जो ऑडिट होगी, आप जो ऑडिट परफॉर्म करोगे उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स. तो एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस हम समझने वाले हैं. तो सबसे पहले तो इसका इंटरनेशनल लेवल जो है उसमें जाते हैं, बिकॉज ऑल द लॉज एंड स्टैंडर्ड्स विच आर मेड इन इंडिया आर बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और उसको फिर मॉडिफाई करके हमारे इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट को जो सूट करते हैं, इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को जो सूट करते हैं, वैसे स्टैंडर्ड्स रिलीज किए जाते हैं. राइट, सो IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, क्या बोला मैम? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स एक बॉडी है जिसने एक बोर्ड एस्टैब्लिश किया है, मतलब उसके अंदर में एक बोर्ड एस्टैब्लिश हुआ है, IAASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड. तो IAASB क्या करता है एक्चुअली? IAASB ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करता है, जो कि वर्ल्ड वाइज इंटरनेशनल लेवल पे यूज हो सके. ठीक है, ये सिंपल बात हो गई इंटरनेशनल लेवल की. कौन फॉर्मुलेट करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स? IAASB. कौन से स्टैंडर्ड्स? ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स. राइट, नाउ कमिंग टू इंडियन सिनेरियो. इंडिया में कौन सी बॉडी है जो पूरा अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स को रेगुलेट करती है? हमारी इंस्टीट्यूट, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. तो हमारी इंस्टीट्यूट ने भी, जस्ट लाइक IFAC, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ बोर्ड जिसका नाम है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड. ठीक है, इंस्टीट्यूट के कई सारे बोर्ड्स हैं, उसमें से एक बोर्ड है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड. ये बोर्ड क्या काम करता है? ये बोर्ड सिमिलर काम करता है जो इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड करता है. वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट करता है, ये हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करता है. राइट, तो IAASB का काम क्या है? ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड का काम क्या है? टू फर्स्ट आइडेंटिफाई वेयर इज देयर नीड ऑफ स्टैंडर्ड, कहाँ पे एक कौन से ऐसा मैटर है जिसके ऊपर एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग रिलीज करना चाहिए. ठीक है, उसके बाद उन्होंने स्टैंडर्ड्स डेवलप करने हैं. दे हैव टू डेवलप द एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स. एंड थर्डली दे हैव टू इंटीग्रेट दीज इंडियन स्टैंडर्ड्स विथ द इंटरनेशनल लेवल, मतलब कम से कम मॉडिफिकेशन हो, इंटरनेशनल लेवल के साथ कन्वर्ज हो सके हम लोग, इसकी ये उनकी एक एम होनी चाहिए. ऐसे स्टैंडर्ड्स उनको रिलीज करने हैं. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो थे, क्या वो मैंडेटरी थे या रिकमेंडेटरी थे? मैम मैंडेटरी थे. ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, एंड दे आर मैंडेटरी इन नेचर. दैट मीन्स यू हैव टू, एज एन ऑडिटर, यू हैव टू कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ठीक है, ये हो गया एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की की. अगर मैं बात करूँ कि कौन फॉर्मुलेट करता है इंडियन सिनेरियो में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को, द IAASB, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड. अभी एक बार ब्रीफ में मैं आपको इसका प्रोसेस बताती हूँ कि कैसे ये फॉर्मुलेट होते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो ये जो बोर्ड है IAASB, ये क्या करता है? ये स्टैंडर्ड्स लिखता है. ठीक है, पहले नीड आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ स्टैंडर्ड की जरूरत है, उसके बाद दे विल ड्राफ्ट द एंटायर स्टैंडर्ड. ठीक है, पूरा स्टैंडर्ड्स को वो लिखेंगे, पूरे स्टैंडर्ड का जो कंटेंट होगा उसको दे विल राइट अप. इसके जो मेंबर्स होंगे वो लोग. उसके बाद इस एक्सपोजर ड्राफ्ट, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोजर ड्राफ्ट. इसको एक्सपोज किया जाता है टू द मेंबर्स. मतलब समझ लीजिए आप IAASB के कुछ सर्टेन मेंबर्स हैं, 10, 50, 100, ठीक है, 50 भी हो, 50 के अराउंड समझ लीजिए. वो मेंबर्स जो है वो फॉर्मुलेट किए स्टैंडर्ड्स इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. नाउ इट इज इशूड
in the public domain as exposure draft to be reviewed and to receive comments from all the members. जो भी इंस्टीट्यूट के मेंबर्स हैं, मतलब जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं प्रैक्टिस में, वो क्या कर सकते हैं, अपने कमेंट्स को जो है दे सकते हैं कि इस ड्राफ्ट में यहाँ पे ऐसा चेंज होना चाहिए, दिस इज नॉट सूटेबल इन द इंडियन एनवायरनमेंट, इट शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियोज. ऐसा करके आप अपने कमेंट्स दे सकते हो जब एक्सपोजर ड्राफ्ट को रिलीज किया जाएगा. तो ये जो ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड होता है, इसके कुछ स्टडी ग्रुप्स बनते हैं जो स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करते हैं. उसके बाद एक्सपोजर ड्राफ्ट रिलीज किया जाता है. एक्सपोजर ड्राफ्ट पे फिर जब कमेंट्स आ जाते हैं तो बोर्ड उन सारे कमेंट्स को स्टडी करती है. उन कमेंट्स पे जो भी एक्शन लेना होता है, कुछ इंप्लीमेंट करने हैं कुछ नहीं करने, वो डिसाइड करके अपने जो स्टैंडर्ड है उसको फाइनलाइज करती है. कौन? AASB. यहाँ पे अगर कुछ एक्सपर्ट्स की आपको हेल्प लगे तो आप वो भी ले सकते हैं, मतलब AASB एक्सपर्ट्स की भी हेल्प ले सकती है. लॉज रेगुलेशंस जो भी हैं इंडिया में, जो भी लॉज रेगुलेशंस हैं उनको ध्यान में रख के स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर किया जाता है. नाउ दिस एक्सपोजर फाइनल ड्राफ्ट इज बीइंग सेंट टू द काउंसिल. जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का काउंसिल है, जो हेड है, ठीक है, हेड बॉडी जो है, उसको ये ड्राफ्ट भेजा जाता है, फाइनल ड्राफ्ट. काउंसिल उसको रिव्यू करते हैं. कुछ भी चेंजेस अगर काउंसिल को लगता है होने चाहिए, काउंसिल इज द हायर गवर्निंग बॉडी, तो काउंसिल वो चेंजेस करवाता है बोर्ड से कंसल्ट करके. AASB से कंसल्टेशन में कुछ चेंजेस कराए जाते हैं एंड फाइनली इट इज इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल. सो हु इशूज द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग? द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. बट इसको कौन बनाता है? AASB. क्लियर हो गया? एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ ICAI की वेबसाइट. हम लोग एक बार चेक करेंगे कि ये सब बोर्ड वगैरह जितने भी मामा बता रहे हो, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, ठीक है, उसके बाद एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है, यू हैव एन एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड. तो एक बार ICAI की वेबसाइट पे चलते हैं. ये हमारा मंदिर है ना, बिकॉज यही आपको जो है आपकी डिग्री और आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको देने वाला है. सो इंस्टीट्यूट की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए बहुत ज़्यादा. आपने ये वेबसाइट देखी होगी काफ़ी बार, आई बिलीव. आप यहाँ पे इस वेबसाइट को विजिट किए होगे फॉर डाउनलोडिंग अ लॉट ऑफ पेपर्स एंड एवरीथिंग. रिसोर्सेज काफ़ी सारे अवेलेबल होंगे यहाँ पे. ओके, चलो कुछ इशू है यहाँ पे कनेक्शन में, वील चेक दैट लेटर. ठीक है, अगर आप जाओगे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, आप अबाउट ICAI के अंदर अगर नॉन स्टैंडिंग कमिटीज़ में जाके चेक करोगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ boards are there. Just like auditing and assurance standard board, we have accounting standards board, we have internal audit standards board. ठीक है, उसके बाद taxation पे board है, then we have your board of studies which is related to the academics. तो ऐसे कई तरह के boards हैं जिसमें AASB is the one we are concerned with right now. ये बात हो गई हमारे स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है. ठीक है, एक बार रीड करते हैं इसको. द IFAC बोर्ड, IFAC का फुल फॉर्म क्या लिखेंगे? IFAC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स हैज एस्टैब्लिश्ड द IAASB to develop and issue in public interest and under its own authority high quality auditing standards for use all around the world. The IAASB functions as an independent standard setting body under the auspices of IFAC. ठीक है, IFAC के अंडर में वो फंक्शन करते हैं. अभी आते हैं ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड में. मैम क्या इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है? MCQ में भी पूछा जा सकता है, या हो सकता है आपको पूछे IAASB का फंक्शन क्या है. ठीक है, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन है वो हम आगे जाके देखेंगे. ICAI is a member of the IFAC and is committed to work towards the implementation of the guidelines issued by the IFAC. So our institute is a member of this international body. Now ICAI constituted the AASB, erstwhile known as the Auditing Practices Committee. तो पहले इसका नाम APC था, Auditing Practices Committee, अभी Auditing and Assurance Standard Board हो गया. आपको यही ध्यान रखना है. तो इस बोर्ड का काम क्या है? सबसे पहले टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया. करेंटली कैसे जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो ऑडिट को कंडक्ट कर रहे हैं, उसको रिव्यू करना. टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस in India and to develop engagement and quality control standards in accordance with the international standards. ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया इनका? रिव्यू करेंगे हम किसको? एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस को, एंड देन वील डेवलप जो भी रिक्वायरमेंट हुई उसके हिसाब से वी विल डेवलप द एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स which will be at par
विथ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, मतलब इट शुड बी इंटीग्रेटेड विद द इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड्स। क्लियर? इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है कि स्टैंडर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। जो एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स की मैं बात कर रही हूँ उसमें कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं और उसकी नंबरिंग किस हिसाब से, ठीक है, कन्वेंशनली उनकी नंबरिंग कैसी होती है, ये हम पढ़ेंगे अभी। सबसे पहला तो हमारे सिलेबस में जो कवर्ड है दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये स्टैंडर्ड्स कब अप्लाई करेंगे? तो बेसिकली इसमें मैं क्या आपको पढ़ाऊंगी, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कौन से स्टैंडर्ड का सेट है, वो कौन सी सिचुएशन में अप्लाई करेगा एंड उसकी कन्वेंशनल नंबरिंग क्या है, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हो। सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। नाम से ही समझ में आ रही किस पे अप्लाई करेगा, ऑन द ऑडिट। ऑडिट किस चीज़ की होती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। अच्छा, फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की या फिर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की? मतलब अगर कोई ईयर बीत चुका है उसकी ऑडिट होगी या फिर आने वाले साल की ऑडिट होती है? आने वाले साल की ऑडिट नहीं होती है ना, जो ईयर ऑलरेडी पास हो चुका है। सो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की ऑडिट होती है, उस पर अप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। उसके बाद आ रहे हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। अब ये रिव्यू एंगेजमेंट्स क्या होते हैं? रिव्यू भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही होता है, बट रिव्यू का जो स्कोप होता है ना दैट इज लिमिटेड, नॉट टू अ वेरी वाइड एक्सटेंट एज ऑफ ऑडिट। बट ये भी होता किसका है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ये होते हैं। जैसे कि इंडिया में सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से हर एक लिस्टेड कंपनी को क्वार्टरली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेड रिव्यू करवानी पड़ती है। तो वो रिव्यू हो गया, दैट इज नॉट वेरी डिटेल्ड एज ऑडिट। तो रिव्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं कौन से? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। मैम रिव्यू में और ऑडिट में क्या डिफरेंस हुआ? मेनली ऑडिट में हम कैसी अश्योरेंस देते हैं गाइज? ऑडिट में हम क्या देते हैं? एक रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस देते हैं। रिव्यू में हम क्या देते हैं मैम? रिव्यू में हो सकता है कि आप एक लिमिटेड अश्योरेंस दें। क्या दें? एक मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस दें, राइट? सो ये हो गया आपका रिव्यू एंगेजमेंट्स। उसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। ये क्या हो गया मैम? ये भी अश्योरेंस की बात कर रहे हैं। अश्योरेंस एंगेजमेंट्स हो गया where the subject matter of audit is not the historical financial statements, किसी दूसरी चीज पे अश्योरेंस देते हैं मैम। जैसे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना देके प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एक अश्योरेंस देना। प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या? जैसे से फॉर एग्जांपल कंपनी को नया शेयर कैपिटल रेज करना है, नया कैपिटल रेज करना है इक्विटी मार्केट से, तो एक प्रोस्पेक्टस बनता है। प्रोस्पेक्टस में उसको अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी देना पड़ेगा, राइट? देना, आपने लॉ में इसको पढ़ा है। तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, या अगर किसी को लोन लेना है बैंक से तो उसको अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देना पड़ता है। तो उसके ऊपर जो अश्योरेंस देते हैं तब हम लोग अप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। या हो सकता है कंपनी के जो इंटरनल कंट्रोल्स है ना उसके ऊपर अश्योरेंस देना, वेदर द इंटरनल कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, उसके ऊपर अश्योरेंस देना को देंगे तभी भी हम अप्लाई करेंगे क्या? स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। बिकॉज इंटरनल कंट्रोल इज नॉट योर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट? तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट मैटर पे अश्योरेंस जब देते हैं देन वी अप्लाई द स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसको कहते हैं SAE। पहला था SA, दूसरा था SRE, फिर है SAE। नेक्स्ट आता है SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ये हो गया आपका नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। ऊपर के जो तीनों थे ना 1 2 3, दीज वर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। ऑडिट में भी हम अश्योरेंस देते हैं, रिव्यू में भी हम अश्योरेंस देते हैं, और अश्योरेंस में तो नाम से ही आ रहा है कि अश्योरेंस ही देंगे। रिलेटेड सर्विस क्या हो गया? रिलेटेड सर्विस इज समथिंग अदर देन अश्योरेंस एंगेजमेंट, दैट इज योर नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। जैसे कि ऑडिटर में भी क्लाइंट का टैक्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है? टैक्स रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या हो गया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज क्लाइंट को टैक्सेशन की इतनी नॉलेज नहीं है, आपको है, तो आप उसके बिहाफ में जाके जो कोर्ट हियरिंग्स वगैरह डिपार्टमेंट में हियरिंग है उसमें आप जाते हो, ठीक है? तो ये काम क्या हो गया? ये एक रिलेटेड सर्विस हो गई। या किसी क्लाइंट ने कह दिया हमारे अकाउंट्स आप बना दो, कंपाइल कर दो, तो वो क्या हो गया? अगेन एक रिलेटेड सर्विस हो गया। मैम क्लाइंट के अकाउंट्स हम बना सकते हैं? जिस क्लाइंट की आप ऑडिट करते हो उसके अकाउंट्स आप नहीं बना सकते हो, बट अदरवाइज आप जिसकी ऑडिट नहीं कर रहे हो उसके अकाउंट्स आप कंपाइल कर सकते हो।
अगर किसी क्लाइंट ने कहा कि हमारे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि हमारी कुछ सब्सिडियरी कंपनीज है, जैसे एक पेरेंट कंपनी होती है उसकी कई सब्सिडियरी कंपनीज हो सकती है। सब्सिडियरी कंपनी मतलब मेजॉरिटी शेयर कैपिटल इज ओन्ड बाय द पेरेंट कंपनी, ठीक है। ये सब आप फाइनल लेवल में अकाउंट्स में पढ़ोगे। तो कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स अगर करना होता है तो वो भी कर सकते हैं, दैट इज कमिंग अंडर योर रिलेटेड सर्विसेज। SRS यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। सो वेयर इज द SRS अप्लाइड? व्हेन the engagement is involving some related services like compilation of accounts, consolidated of financial statements हो गया, कुछ agreed upon procedures होते हैं, ठीक है। ये सब आपके फाइनल ऑडिट में कवर्ड है। अभी इंटर ऑडिट में आपके सिर्फ स्टैंडर्ड्स ही कवर्ड है, वो भी सिर्फ 26, ठीक है। सारे स्टैंडर्ड्स भी कवर्ड नहीं है, आपके कुछ ही स्टैंडर्ड्स कवर्ड है। बाकी SRE, SAE, SRS ये सब आप फाइनल में पढ़ोगे। लास्ट जो आता है दैट इज स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये क्या हो गया? ये आपका एंगेजमेंट से रिलेटेड नहीं हुआ, मतलब एंगेजमेंट से रिलेटेड भी आप इसको मान सकते हो, बट जनरली दिस इज द क्वालिटी ऑफ ऑडिट और द क्वालिटी ऑफ सर्विस, द क्वालिटी ऑफ ऑडिट और assurance or related service that is being provided by your firm. So this is for the quality of your firm, the quality of service provided by your firm. It is not related to engagement कि engagement audit engagement आई तब आपको SQC लगाना है, नहीं। SQC आपकी कोई भी engagement हो, आपको हमेशा अपनी firm के अंदर ऐसी policies बना के रखनी है जिससे आपकी काम का जो quality है वो maintain हो। अभी हम इसके बाद just बाद SQC 1 ही start करेंगे, that is our next topic। उसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कैसे quality maintain हो सकती है, ठीक है। अभी आप ये समझ के रखो, ये कोई engagement level standard नहीं हो गया। ऊपर में हमने जो पढ़ा था वो सब आपके काम से रिलेटेड थे, और ये क्या है? ये आपके काम की क्वालिटी से रिलेटेड है। ऊपर जो भी पढ़े वो काम कैसे करेंगे ये बताना है, काम बताते हैं, काम कैसे करना चाहिए ये बताते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल है ये क्या बताता है? ये बताता है आपकी काम की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, राइट। जो एसेज है ना वो ऐसे 100 से 999 इनकी सीरीज होती है, मतलब ऑडिट से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स बनेंगे ना वो इसी सीरीज में होंगे, 100 से लेके 999 तक। क्या मैम इतने स्टैंडर्ड्स हैं ऑलरेडी? नहीं नहीं, इतने स्टैंडर्ड्स है नहीं। अगर कोई स्टैंडर्ड फ्यूचर में रिलीज होता है विच इज रिलेटेड टू ऑडिट तो ये सीरीज अलॉटेड है, इसके अंदर में स्टैंडर्ड इशू हो सकते हैं। SRE की सीरीज क्या होती है? 2000 से लेके 2699, SAE की 3000 से लेके 3699, SRS की सीरीज होती है 4000 से लेके 4699, और SQC सिंस एक ही है ना, क्वालिटी के बारे में जो भी बात होगी एक ही स्टैंडर्ड में हो सकती है, राइट। अब अश्योरेंस एंगेजमेंट तो अलग अलग तरह की एंगेजमेंट हो सकती है ना, तो अलग अलग स्टैंडर्ड हो सकते हैं, क्वालिटी अलग अलग तरह की नहीं होगी। सो SQC इज जस्ट वन, दैट इज SQC 1। तो आपको इसमें से क्या बातें याद रखनी है? आपको याद रखना है कितने टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं। बोलो कितने टाइप के स्टैंडर्ड्स हैं? 5 टाइप। इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? इन सबको हम मिला के बोलते हैं, लिख लेंगे एक बार, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज इज नोन एज एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इन्हीं को मिला के हम कहते हैं एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। जो फर्स्ट 3 है SA दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एक बार रिपीट करेंगे आप मेरे साथ। पहला कौन सा? SA स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, दूसरा SRE स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, तीसरा SAE स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, चौथा SRS standards on related services, मतलब this is a non assurance engagement, it is not an assurance engagement। यहाँ पे आप कोई ओपिनियन नहीं देते हो, यहाँ पे आप क्या देते हो? आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी कंपाइल करके दे रहे हो, आप कुछ प्रोसीजर जो क्लाइंट ने कहा वो परफॉर्म करके उनको दे रहे हो, है ना। सो दिस इज SRS एंड लास्ट वन इज SQC स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स, कितने तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं और कौन सी सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। एक बार देखेंगे अपने यहाँ पे SA कब अप्लाई करता है, देखो, अप्लाई इन द ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये कब अप्लाई करेगा? हिस्टोरिकल FI के ऊपर। रिव्यू एंगेजमेंट्स SRE कब अप्लाई करेगा? SRE विल अप्लाई जब रिव्यू होगी। रिव्यू इज लिमिटेड इन नेचर, ठीक है, आप लिख सकते हो, इट हैज अ नैरोअर स्कोप देन ऑडिट। रिव्यू हैज अ नैरोअर स्कोप देन ऑडिट,
ठीक है। फिर आता है अपना SAE। SAE कब अप्लाई करते हैं? अच्छा, रिव्यू हिस्टोरिकल FI की होगी कि प्रोस्पेक्टिव FI या कोई और चीज़ की हो सकती है। रिव्यू भी हमेशा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की होगी, ठीक है। उसके बाद SAE किसके ऊपर अप्लाई करेगा? Of assurance, it will apply to assurance engagements which is related to other than historical financial statement. तो इसमें आप मार्क करेंगे क्या? Other than historical financial statements. हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा अगर कहीं अश्योरेंस देनी है। रिलेटेड सर्विसेज, इट अप्लाइज टू एंगेजमेंट इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। तो अभी ना RS जो है वो दो ही है, सिर्फ एक अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के ऊपर है और एक कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स के ऊपर है। फ्यूचर में और भी किसी एंगेजमेंट पे आ सकते हैं विच विल बी डीम्ड टू बी अ रिलेटेड सर्विस, विच विल बी टर्म्ड एज अ रिलेटेड सर्विस, राइट। और SQC कब अप्लाई करेगा? इट इज अप्लाइड टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ फर्म्स परफॉर्मिंग ऑडिट एंड अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। तो सारे ही अश्योरेंस एंगेजमेंट्स पे SQC जो है अप्लाई करता है। डन। ये हो गया ना हमारा स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एक बार देखेंगे अपने। क्विकली कम टू द क्वेश्चन आंसर्स रिलेटिंग टू स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। The first question is, the IAASB functions as an independent standard setting body under the auspices of IFAC. Explain stating the objective of IAASB and also how it achieves those objectives. तो objective क्या है IAASB का? To set high quality auditing and assurance standards which can be used all over the world. और इसको कैसे अचीव करता है? 5 तरह के स्टैंडर्ड्स बना के। कौन से? हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बाय फॉर्मुलेटिंग और एस्टैब्लिशिंग हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिट एंगेजमेंट्स, फॉर ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फॉर रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल एंगेजमेंट्स, फॉर assurance engagements other where the subject matter is other than historical financial information, for related services such as compilation engagements, agreed upon procedures. agreed upon procedures क्या हो गए? agreed upon procedures हो गया कि किसी भी थर्ड पार्टी ने आपसे कहा कि आपको ये काम करना है। जैसे किसी बैंक ने कहा कि आपको ये एंटिटी है XYZ, इसके आपको इन्वेंट्री की ऑडिट कर, इन्वेंट्री का आपको एक अश्योरेंस देना है इन्वेंट्री के ऊपर। तो ये हो गया आपका अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। आपने अग्री किया किसी थर्ड पार्टी के साथ टू परफॉर्म अ सर्टेन प्रोसीजर। डिटेल में फाइनल लेवल में पढ़ना है, अभी इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वन इज फॉर क्वालिटी कंट्रोल, मतलब एस्टैब्लिशिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट एज वेल एज अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। एंड लास्ट वन इज पब्लिशिंग अदर टाइप ऑफ प्रोनाउंसमेंट्स। अदर प्रोनाउंसमेंट जैसे कुछ गाइडेंस नोट्स हो गए। स्टैंडर्ड्स तो मैंडेटरी होते हैं ना कि ये चीज़ कंप्लाई करना है, इसके लिए स्टैंडर्ड है। अब कुछ अगर मैंडेटरी नहीं हुआ, रेकमेंडेटरी हुआ, ऑडिटर्स को हेल्प करने के लिए, उनको समझाने के लिए कि किसी पर्टिकुलर काम को कैसे करना है, उसके लिए गाइडेंस नोट इशू होते हैं। सो इशूइंग अदर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंसमेंट्स, राइट। यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस वंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस अभी न्यू सिलेबस में पूछे जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, मे बी आस्क्ड, बिकॉज इंस्टीट्यूट समझ गई है कि बच्चे समझते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कौन पूछेगा, बट इंस्टीट्यूट इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकती है आपसे। क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव इज टू सेट और एस्टैब्लिश हाई क्वालिटी ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। ये कैसे अचीव करती है? बाय एस्टैब्लिशिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट, फॉर अदर टाइप्स ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज। पढ़ लीजिए आप एक बार। ये अदर टाइप ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज में आपका बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मैटर्स। फाइनेंशियल मैटर्स में तो आपका रिव्यू आ गया, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और आपका नॉन फाइनेंशियल मैटर्स में वो अश्योरेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो मैंने एग्जांपल दिया, वो सारी मैटर्स आ गए, राइट। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन को मार्क कर लेंगे, डन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ AASB ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। तो इसके रोल में 2 चीज़ें थी। वन इज टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस, सेकेंड वन इज टू फॉर्मुलेट और एस्टैब्लिश द एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एक बार रीड करेंगे। एंड ऑल्सो टू इंटीग्रेट
the auditing practices, current auditing practices and the standards with the international guidelines and standards. Just go through it once. अच्छा 2004 में IAASB ने एक क्लैरिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था. क्लैरिटी प्रोजेक्ट वाज मेंट फॉर ब्रिंगिंग मोर क्लैरिटी इन द स्टैंडर्ड्स एंड वट एवर प्रोनाउंसमेंट्स इज बीइंग इशूड बाय IAASB. तो वो क्या कर रही थी, मॉडिफाई कर रही थी अपने जितने भी पुराने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग थे, बिकॉज इतना कुछ चेंज हो गया बिजनेस एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में. तो पुराने जो स्टैंडर्ड्स थे उसमें कई सारी रिक्वायरमेंट्स ऐसी थी जो रिडंडेंट हो गई, अब काम की नहीं है. तो IAASB ने क्या किया, उन स्टैंडर्ड्स को मॉडिफाई करना शुरू किया. तो अभी जो हमारा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड है, स्टैंडर्ड्स बोर्ड है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका ये ऑब्जेक्टिव है कि क्लैरिटी प्रोजेक्ट के साथ साथ वो भी अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मॉडिफाई करें. ठीक है, यही लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू इंप्रूव द क्लैरिटी ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. डन, इसको भी मार्क कर लेंगे आप. तो अगर रोल पूछूं मैं, रोल क्या है AASB का, टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस एंड टू डेवलप द EQCs, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स. एंड second objective is to integrate the current auditing practices and the standards with the international guidelines. Clear? Next question is, statements issued by institute are mandatory but guidance note are recommendatory. तो देखो, जो हम charts में पढ़ते आए हैं ना, उसी को हम यहाँ पे वापस से क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं. तो बेसिकली हम सारी चीज़ों को इतनी बार रिवाइज कर रहे हैं कि आपके एकदम जहन के अंदर चीज़ें उतर जानी चाहिए. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो चार्ट में हम नहीं कवर किए बिकॉज वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन आंसर्स में उनको देख लेते हैं. बट एक्सप्लेनेशन के टाइम मैं कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें बता ही देती हूँ. स्टेटमेंट्स जो है वो मैंडेटरी हैं. स्टेटमेंट्स मतलब क्या हो गया, जो स्टैंडर्ड्स हैं, दीज आर मैंडेटरी, दीज आर मेंट फॉर सिक्योरिंग कंप्लायंस विद सर्टेन मैटर्स. And guidance notes are only meant for guiding the auditors on how to conduct their work practically. ठीक है, गाइडेंस नोट्स जैसे एग्जांपल हो गया, एक इंडिपेंडेंस के ऊपर गाइडेंस नोट्स है. मतलब ऑडिटर को पता नहीं कि कैसे इंडिपेंडेंस मेंटेन करे, हाउ डू आई इंश्योर दैट आई एम मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस, तो उसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक डिटेल्ड गाइडेंस नोट ऑन ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस इशू किया. वैसे ही गाइडेंस नोट आपको दूसरी चीज़ों पे भी मिलेगा, जैसे गाइडेंस नोट ऑन टैक्स ऑडिट है. इस तरह के कई सारे गाइडेंस नोट इंस्टीट्यूट इशू करता है टू ब्रिंग मोर क्लैरिटी एंड टू गाइड द मेंबर्स ऑन हाउ टू कंडक्ट देयर ऑडिट. These are recommendatory. Generally a member is expected to follow the guidelines, बट अगर मुझे लग रहा है कि मेरी जो ऑडिट है, मैं जिस क्लाइंट की ऑडिट कर रही हूँ उस पर ये वाला गाइडेंस नोट ना अप्लाई करें, मतलब इसकी जगह मैं ये अप्लाई करूँ तो बेटर पिक्चर वो शो करेगा, तो मैं वैसा भी कर सकती हूँ. I may not apply the guidance note की requirement, but it should depend on my professional judgment. ऐसा नहीं मुझे नहीं मन है लगाने का, मैं नहीं लगा रही, मैं नहीं फॉलो करी. It should not be like that. You have to apply your professional judgment in deciding whether you have to deviate from the guidelines issued in the guidance note or not. Clear? Just go through this question once and then this topic will also be done. एक बार रीड कर लेंगे इसको. बिल्कुल वही है जो मैंने आपको बताया. एसएस से कंप्लाई करना मैंडेटरी है बट गाइडेंस नोट रिकमेंडेटरी है. दिस क्वेश्चन ऑल्सो मार्क इट एज इंपॉर्टेंट. तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको अभी बताया कि इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप. देखो, इंपॉर्टेंट मार्क कराने का मकसद मेरा ये भी है कि अगर ना कराऊं तो शायद आप लोग इसको इग्नोर कर दोगे, बट अगर इंपॉर्टेंट रहेगा ना तो आप लोग इसको पढ़ोगे. Because this is a little more theoretical in nature, right? Just go through it once. अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए आप लोग स्माइली वगैरह कुछ बना रहे हो ना, स्टार मार्क कर रहे हो ना, करते रहना. वो चीज़ भूलना मत. ऐसा नहीं कि एक क्लास में किया फिर भूल गए उसको. यू हैव टू मेक इट अ कंटिन्यूस हैबिट. बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको करना है ना. एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए बस क्वेश्चन को. हमारी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट भी खुल गई है. मैं आपको एक बार दिखाती हूँ जो मैं बात करी थी अलग अलग बोर्ड्स की.
You can see this is the accounting standard board, you have the auditing and assurance standard board, AASB जिसकी हम बात कर रहे थे, है ना. इसमें कौन चेयरमैन है, सबकी आपको कौन मेंबर्स है, सबकी आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी. उसके बाद वी हैव द एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड, वी हैव द टैक्सेशन ऑडिट्स क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, वी हैव द पीयर रिव्यू बोर्ड. अलग अलग तरह के यहाँ पे बोर्ड्स हैं. ठीक है. आप अगर गाइडेंस नोट्स देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पे गाइडेंस नोट्स भी आपको मिल जाएंगे. ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स के गाइडेंस नोट्स जिनकी हम बात कर रहे थे, गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट ऑफ बैंक्स वी हैव. अलग अलग चीज़ों के ऊपर गाइडेंस नोट्स हैं. ठीक है. ठीक है. दिस वॉज जस्ट टू शो यू एक्चुअली कैसा है ये. आई होप आपने ये भी कर लिया. क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑल्सो डन फ्रॉम योर एंड, राइट. चलो ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विथ SQC 1 एंड SA 220, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स. ओके.